Dear students, in the last lecture, here we have discussed about hyperconjugation. Now, our fourth topic about electronic displacements in covalent compounds, it is electromeric effect. Here I have written down the definition of electromeric effect. My dear students, remember that during the discussion of inductive effect, resonance and hyperconjugation, वहां पे मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि all the three types of electronic displacements are permanent effects, while as this very effect which we are going to discuss, it is a temporary effect. Why it is a temporary effect? I will explain it. शाबाश. First of all, इतना याद रख लीजिए कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट. व्हाट इज इट इज definition? In case of electromeric effect, dear students, there is the complete transfer of shared pair of pi electrons. As the name indicates, pi electrons. Mind it, electromeric effect किन में पाया जाएगा? या तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे या तो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे. मींस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में. शाबाश. It is the complete transfer of shared pair of pi electrons towards one of the unsaturated atoms in the presence of an attacking reagent. In case of electromeric effect, एक unsaturated atom, एक unsaturated compound में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए डबल बॉन्ड बी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. ए एक एटम है, बी एक एटम है. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. अटैकिंग रिएजेंट, माइंड इट. अगर अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन में नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट will be absent. That is why electromeric effect is a temporary effect. वहां एक attacking reagent की जरूरत पड़ती है. That is why if attacking reagent is removed in the reaction, temporary electromeric effect is absent. Now यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले ली. एग्जांपल में मैंने कहा A double bond B is a unsaturated compound made up of atom A and atom B. शाबाश डियर स्टूडेंट्स. इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट यहां पे क्या होगा? यहां तो ये A पॉजिटिव B नेगेटिव बन सकता है. A पॉजिटिव B नेगेटिव का मतलब है इफ B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो A से ज्यादा होगी. B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन A. दैट इज वाई आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा, इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन A, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, these are pi electrons, 2 electrons are there, these will get transferred to B. That is why B पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, A पे पॉजिटिव चार्ज. If B is more electronegative in character than A, then it will become A positive, B negative. If shabash A is more electronegative in character than B, at that very time it will become A negative, B positive. यहां पे क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट. Why it is a temporary effect? यहां पे अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस जरूर होनी चाहिए. That is why we are saying that it is a temporary effect. अगर attacking reagent reaction में नहीं है तो electromeric effect will be absent. यहाँ पे मैं फिर से explain कर लूंगा. For example, मैंने एक general example यहाँ पे ले ली. A double bond B. If B is more electronegative in character than A, then these very pi electrons will get transferred to B and it will develop a negative charge and A will develop a positive charge. If A is more electronegative in character than, शाबाश, अगर A ज्यादा electronegative in character than B से ज्यादा है, at that very time A पे ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये उसी पे ट्रांसफर, उसी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे. दैट इज व्हाई
ए पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, वहां पे ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, शाबाश, टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम्स। ये भी अनसैचुरेटेड एटम है, ये भी अनसैचुरेटेड एटम है, क्योंकि इनके बीच में एक डबल बॉन्ड है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। हाँ, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस जरूर मस्ट है। हाँ, शाबाश। यहाँ पे आप लोग, मैंने ये जनरल एग्जांपल दे दी, अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा और मैं उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के टाइप्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, शाबाश। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जिस तरह से डियर स्टूडेंट्स मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में कहा था प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस में प्लस आर माइनस आर, हाइपर कंजुगेशन में प्लस एच माइनस एच, सेम इज द केस हियर, प्लस ई माइनस ई, प्लस ई माइनस ई। डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट प्लस ई इफेक्ट कब होगा, इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक अनसैचुरेटेड एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, अगर ये अटैकिंग रिएजेंट पे उसके बाद ट्रांसफर हो जाएंगे, एट दैट वेरी टाइम वी विल से दैट देयर इज द प्लस ई इफेक्ट। अब मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। अभी तक तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दे दी थी, ए डबल बॉन्ड बी। अब मैं ए के बदले कोई एलिमेंट लूंगा, बी के बदले कोई एटम लूंगा। शाबाश। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मेरे पास एक एल्कीन है CH2, यहां पे भी ये CH2 है, इट इज इथीन। इथीन को मैंने किसी इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया। इलेक्ट्रोफाइल, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग, if transfer of pi electron is towards the attacking reagent AR is E positive, यहाँ पे E positive attacking reagent है। यहाँ पे देख लीजिए, why it is a temporary effect। अगर ये E positive यहाँ पे नहीं होगा तो ये जो ये pi electrons है, नहीं ये इस कार्बन एटम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं ये इस कार्बन एटम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। मींस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल बी एब्सेंट। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं यहां पे फॉर एग्जांपल दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू दिस वेरी कार्बन एटम। यहां से इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहीं पे एज इलेक्ट्रोफाइल, it is an electron loving species. Electrophile is an electron loving species. It will attack at that very position where there is maximum electron density. That is why आप लोगों ने देखा होगा, ये अगर आप लोगों ने बुक्स पे देखा होगा, यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखाता है। पहले यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट है कि यहाँ पे ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, these are ट्रांसपोर्ट टू दिस वेरी कार्बन एटम, वहां से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा। ऊपर मैंने क्या लिखा, इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट E पॉजिटिव यहाँ पे है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये उसी पे अब ट्रांसफर हो गए हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2E। यहाँ पे E CH2 के साथ E अटैच हो जाएगा। E is any electrophile. For example, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल, शाबाश। इस तरह से ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर इस कार्बन एटम पे जब हो जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH, यहां पे पॉजिटिव लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड। शाबाश। उसके बाद CH एंड E, उसके साथ साथ E, क्योंकि E जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है ये
इसने किस कार्बन एटम पे अटैक किया? इस कार्बन एटम पे जहां पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश। इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, एट दैट वेरी टाइम आप लोगों से कोई कहेगा, शाबाश, एल्कीन्स में, एल्कीन्स में कौन सा इफेक्ट पाया जाता है? इट इज प्लस ई इफेक्ट, बिकॉज देयर इज द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। सिंपल टर्म्स में आप लोग याद रख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दिस वेरी केस दिस इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन, दीज आर सिमेट्रिकल एल्कीन्स। हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन की एग्जांपल यहाँ पे देने जा रहे हैं, उसके बाद हम माइनस ई इफेक्ट डिस्कस कर लेंगे। इट इज टू मच इजी। माइनस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट में क्या देख लीजिए बेटा कि एल्कीन्स जो होते हैं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट वी कैन से, या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, वहां पे अगर हम किसी भी एल्कीन को किसी भी इलेक्ट्रोपाइल के साथ ट्रीट कराएंगे एज एल्कीन्स, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ दीज वेरी पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए फ्रॉम वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम्स, वी विल से दैट it will have plus E effect. It will have, बस इतना याद रख लीजिए, if transfer of pi electrons is towards the attacking reagent, plus E effect. हाँ, उसके बाद में और दो तीन एग्जाम्पल्स प्लस ई इफेक्ट के दूंगा। उस पहले आप लोग देख लीजिए माइनस ई इफेक्ट। इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट टुवर्ड्स द attacking reagent, or it is away from the AR. AR is the attacking reagent. यहाँ पे मैंने लिखा है, या यहाँ पे मैंने लिखा है attacking reagent. If transfer of pi electron is away from the attacking reagent, or it is not towards the attacking reagent. यहाँ पे आप लोगों ने देखा transfer of pi electron is towards the attacking reagent. If that is plus E effect. If transfer of pi electrons is not towards the attacking reagent, या is away from the attacking reagent. इसकी मैंने दो एग्जांपल दे दी। इसके बाद में जब हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, बाद में इसके लिए फिर से एग्जांपल्स दे देंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन की बात की, मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की भी बात कर लूंगा। हाँ, शाबाश। देख लीजिए, इसकी एग्जांपल आप नोट कीजिए, प्लस ई इफेक्ट की। अब माइनस ई इफेक्ट, यहां पे आप लोगों ने, दिस इज CH3 डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैं क्या यहां पे लिखूंगा? इफ Nu नेगेटिव, Nu नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल, Nu नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile is electron rich. It is electron rich. It will attack to this very carbon atom. यहाँ पे क्या होगा? देख लीजिए बेटा, here it is the attacking reagent. Here it is the attacking reagent. अब nucleophile is electron rich. इसने अटैक किया किस पे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। This is known as carbonyl group. C double bond O is known as carbonyl group. हाँ, जिनमें ये C double bond, जिन कंपाउंड्स में ये C double bond O group होगा, these are known as carbonyl compounds. Carbonyl, this is known as ketone. हाँ, ये कीटोन है। R, C double bond O, R. हाँ, R के बदले यहाँ पे मतलब RN alkyl group, CH3 is the methyl group. These are ketones, carbonyl groups. Carbonyl having carbonyl group. This very C double bond O, यहाँ पे ये जो ये pi bond है, it will get शाबाश ट्रांसफर टू ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, इट विल बिकम CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Nu, यहाँ पे Nu ने अटैक किया किस पे? कार्बन पे। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, दीज आर गेटिंग ट्रांसफर टू वन ऑफ द unsaturated atoms but not towards the attacking reagent.
यहाँ पे NU ने किस पे अटैक किया, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन, दैट इज व्हाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उस कार्बन को के पॉजिटिव चार्ज को शाबाश बैलेंस किया NU ने, हाँ, NU इज शाबाश न्यूक्लियोफाइल। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने कहा इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, मैंने अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन में ले लिया, अटैकिंग रिएजेंट ने ही वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्सेप्ट किया, मींस एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल टू एल्कीन्स। जहां कहीं पे भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एल्कीन को हो जाएगा, एट दैट वेरी टाइम इट विल शो प्लस ई इफेक्ट। जहां कहीं पे भी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड याद रख लीजिए बेटा, जिनमें C डबल बॉन्ड O होगा। फॉर एग्जाम्पल किन में होता है, अल्डिहाइड्स में होता है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, शाबाश, एसिड क्लोराइड्स, एसिड एमाइड्स, न्यूक्लियो, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, शाबाश, अभी मैंने दिखाया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू एल्कीन्स, इट विल शो प्लस ई इफेक्ट, बिकॉज जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दीज आर गेटिंग ट्रांसफर towards the electrophile, towards the attacking reagent, यहाँ पे away from the attacking reagent। क्यों, आप लोगों ने देख लिया NU ने कार्बन पे अटैक किया, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ऑक्सीजन पे, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ऑक्सीजन पे, हाँ, शाबाश। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ माइनस ई इफेक्ट, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ माइनस। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जब कहीं पे भी किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक कर लेगा, और कार्बोनाइल कंपाउंड में, शाबाश, इन दिस वेरी केस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन, ऑक्सीजन की तरफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर लेगा, कार्बन पे, शाबाश। एक और एग्जांपल इसकी, इट इज नॉट नेसेसरी कार्बोनाइल कंपाउंड में ये पाया जाएगा, साइनाइड्स में, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, these are unsaturated, शाबाश बेटा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन। यहाँ पे अगर हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है शिफ्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे RC, यहाँ पे R डबल बॉन्ड N, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन। मींस जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ नहीं। दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ माइनस ई इफेक्ट, टू एग्जांपल्स ऑफ प्लस ई इफेक्ट। अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर देंगे प्लस ई इफेक्ट की। माइनस ई इफेक्ट में सेम मैकेनिज्म है, या तो कार्बोनाइल कंपाउंड में, शाबाश, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू साइनाइड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू साइनाइड्स। हाँ, यहाँ याद रख लीजिए, जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जो ही हमने किसी भी न्यूक्लियोफाइल को इस रिएक्शन में उनके साथ रिएक्ट कराया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो जाएंगे मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेम इज द केस हियर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाँ, शाबाश। अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लिखना होगा, पहले ही लिख लीजिए, in case of electromeric effect, there is the complete transfer of pi electrons towards one of the unsaturated atoms in the presence of an attacking reagent। अगर आप लोगों से कोई कहेगा why it is a temporary effect, याद रख लीजिए,
अगर हमने अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस रिएक्शन में नहीं है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल बी एब्सेंट। हाँ, हमने अटैकिंग रिएजेंट को रिएक्शन में रिमूव किया तो जो फॉर एग्जांपल मैंने ये भी कहा था A डबल बॉन्ड B in the presence of AR it will give for example A negative B positive, तब मैंने ले लिया A is more electronegative in character than B। हाँ? B पे पॉजिटिव चार्ज, A पे नेगेटिव चार्ज। if AR is removed, if AR is removed, हमने AR को रिमूव किया तो ये बैक A डबल बॉन्ड B बन जाएगा। है शाबाश, ये याद रख लीजिए। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, E प्लस E इफेक्ट में मैंने आप लोगों को कहा था, ये एग्जांपल मैंने ज्यादा दे दी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने आप लोगों को कहा E पॉजिटिव। E पॉजिटिव इज एनी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। मैंने तब क्या कहा था, E अगर ये यहाँ पे इस कार्बन एटम पे ट्रांसफर हो गया तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर गेटिंग ट्रांसपोर्ट towards the attacking reagent। हाँ, at that very time we are seeing that it will show plus E effect। ये सिमेट्रिकल एल्केन था हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है प्लस E पॉजिटिव, प्लस E पॉजिटिव, आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वहां पे मार्कोनिकॉफ्स रूल में हम कहते हैं ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड इज HX, it will become H positive X negative। during the addition of hydrogen halides to unsymmetrical alkanes, what will happen there, वहां पे आप कह रहे हो the negative part of the attacking reagent वहां पे हाइड्रोजन हैलाइड होता है। the negative part of the attacking reagent will attach itself to that very carbon atom which contains lesser number of hydrogen atoms। ये मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में, मार्कोनिकॉफ्स रूल की डेफिनेशन आप दे रहे हो कि जब हमने कोई अटैकिंग रेजेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैलाइड इट इज H पॉजिटिव X नेगेटिव, अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड को अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ट्रीट कराया तो अटैकिंग रेजेंट का नेगेटिव पार्ट दैट इज X नेगेटिव, वो अटैक कर लेगा किस कार्बन एटम पे, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में उसका रीजन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही है। शाबाश बेटा, वी आर सेइंग दैट अगर यहाँ पे प्रोडक्ट दिस इज E पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, H पॉजिटिव, मींस यहाँ का H पॉजिटिव अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ इसे ट्रीट कराएंगे तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे शाबाश डियर स्टूडेंट्स, प्लस I इफेक्ट यहाँ पे ड्यूरिंग द व्हाट वी कैन से in case of electromeric effect we are saying that if the transfer of pi electrons is towards the attacking reagent, if transfer of pi electrons is towards the attacking reagent यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। अभी हमने यहाँ पे देख लिया बेटा कि यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है, चलो इस पे नेगेटिव चार्ज, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता तो E पॉजिटिव इसी पे अटैक कर लेगा, लेकिन यहाँ पे हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पे किस पे पॉजिटिव, किस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किस पे नेगेटिव। ये डिटरमाइन करता है कि इसका एनवायरनमेंट क्या है। इस कार्बन एटम के बगल में CH3 ग्रुप है, it will have plus I effect, what we can say और plus H effect भी उसमें होगा। हाँ शाबाश। नाउ यहाँ पे देख लीजिए बेटा, इस कार्बन एटम के एडजेसेंट में कोई भी का अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जिस कार्बन एटम पे जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा शाबाश, उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी डिस्कस किया है, हमने हाइपर कंजुगेशन में भी, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट में भी डिस्कस किया है। मैंने कहा था जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। याद रख लीजिए यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स दिस वेरी कार्बोकैटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय plus I effect of CH3 or plus H effect of CH3. Mind it. Now that is why यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव. जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बिकॉज C and C have equal electronegativity, प्लस E इफेक्ट में एल्कीन्स में जो बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है. शाबाश. अब इस पे नेगेटिव चार्ज या इस पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट देखना है. यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट की तरफ नहीं देखना है. ये ई पॉजिटिव यहाँ पे भी आ जाता है, इसका मतलब है इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, या इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज. तब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा. लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है, हमें देखना होता है कार्बन, हर एक कार्बन एटम का एनवायरनमेंट. जिस कार्बन एटम में अगर प्लस ई इफेक्ट ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा या प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होगा, उसी कार्बन एटम का कार्बोकैटायन बन जाएगा, उसी कार्बन एटम का कार्बोकैटायन बन जाएगा. इसका मतलब है ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये का मतलब कार्बोएनायन बन जाएगा. दैट मीन्स अगर ये इस पे नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, वही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे ट्रांसफर हो जाएगा. इसका मतलब है ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये किस पे ट्रांसफर हो गया है, एक्चुअली ई पॉजिटिव पे. एक्चुअली जो आपके पास प्रोडक्ट होगा इट विल बिकम CH3 CH2 और उसके साथ E. नाउ मैंने ये भी आप लोगों को कहा कि मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म यही है. वो इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है. शाबाश. बाद में X नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो यहाँ पे आ जाएगा. मीन्स अगर आप लोगों के पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 plus HX. Actually, dear students, during the addition of hydrogen halides to unsymmetrical alkenes, negative part हम वहाँ पे क्या कहते हैं, negative part will attack itself to that very carbon atom containing lesser number of hydrogen atoms. उसका रीजन है क्योंकि उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उसका कार्बोकैटायन क्योंकि उसके शाबाश उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, उसका प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होता है. दैट इज वाई इसमें पहले स्टेप पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 और H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे स्टेप में X नेगेटिव इस पे अटैक कर लेगा और इट विल बिकम CHX, और यहाँ पे हम CH2H भी लिख सकते हैं या CH3 भी लिख सकते हैं. ये इसका प्रोडक्ट होगा अगर हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल में प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट कराया. जो नेगेटिव पार्ट अटैकिंग एजेंट का होगा वो अटैक कर लेगा किस कार्बन एटम पे, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे. एक्चुअल रीजन ये है क्योंकि उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है. शाबाश. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आप लोगों ने अब क्या यहाँ पे सीख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है किसी भी एल्कीन का को, तो एट दैट वेरी टाइम उसे हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल. अगर माइनस ई इफेक्ट होगा तो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे और एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है. यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल का भी मैंने कंसेप्ट दे दिया. एक्चुअल मार्कोनिकॉफ्स रूल का मैकेनिज्म यही है कि नेगेटिव पार्ट क्यों उस कार्बन एटम पे अटैक कर लेगा जहां जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है. हाँ, शाबाश. और एक एग्जांपल खुद आप ट्राई कीजिए. फॉर एग्जांपल आपके पास ये होगा CH, इसके पास CH3, उसके पास CH3. अगर हमने शाबाश E पॉजिटिव को यहाँ पे उसके साथ ट्रीट कराया, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब CH डबल बॉन्ड C किसके पास प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे सिर्फ इस कार्बन एटम पे एक प्लस आई इफेक्ट, इस कार्बन एटम पे कितने प्लस आई इफेक्ट, 2. मीन्स इसी का कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसका कार्बोएनायन बन जाएगा. मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस पे अटैक कर लेगा, CH3 CH, यहाँ पे E और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3, यहाँ पे CH3. हाँ, शाबाश. ये एक्चुअल इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, क्योंकि
इस ये पॉजिटिव चार्ज इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय टू अल्काइल ग्रुप्स, 2 plus I effects or 2 plus H effects. Shabash. These are the examples related to plus E effect. Related to plus E effect. Symmetrical alkene में, unsymmetrical alkene में. शाबाश. और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए. Related to plus E effect. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH. अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, शाबाश. O जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा एक्चुअली, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन एटम पे. शाबाश. एक्चुअली ये जो ये ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे. CH2 इसके पास नेगेटिव चार्ज लेकिन इलेक्ट्रोफाइल उसी के पे आ जाता है. द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट ये है CH, ये O पॉजिटिव H. देख लीजिए यहाँ पे ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो गए, लेकिन एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए. एक्चुअली जो इंटरमीडिएट होगा दैट विल बी CH2 नेगेटिव CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड O. ये बन जाएगा एक्चुअल जो मेन इंटरमीडिएट है, ये बन जाएगा. इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज. वाई इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा. दैट इज वाई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर लेगा. शाबाश. नाउ और थोड़ा मैंने याद रख लीजिए कि माइनस ई इफेक्ट. अब प्लस ई इफेक्ट आप इतना याद रख लीजिए, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स टू एल्कीन्स, चाहे वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा. मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने कहा आप लोगों से कि वहां पे हाइड्रोजन हैलाइड होता है. हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है और हैलोजन न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है. पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा, किस कार्बन एटम पे जाएगा, उस कार्बन एटम पे अटैक कर लेगा जिसमें प्लस H इफेक्ट या प्लस I इफेक्ट कम होगा, और नेगेटिव चार्ज वहीं पे जाएगा जिसमें प्लस H इफेक्ट या प्लस I इफेक्ट ज्यादा होगा. यही इस मार्कोनिकॉफ रूल का मेन मैकेनिज्म है, मेन शाबाश कंसेप्ट है. नाउ और एक एग्जांपल, तो व्हाट वी कैन से, फॉर एग्जांपल जो 12th में आप लोगों का एक यूनिट है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वहां पे एक रिएक्शन आप लोग वहां पे डिस्कस करते हो. कीटोन्स में भी दिस इज कीटोन, दिस इज नोन एज एसीटोन और प्रोपेनोन भी इसे कहते हैं. एसीटोन कॉमन नेम है, प्रोपेनोन IUPAC नेम है. वहां पे एक रिएक्शन आप पढ़ते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू कीटोन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू, एक्चुअली हाइड्रोजन साइनाइड इज H पॉजिटिव CN नेगेटिव. पहले क्या होता है देख लीजिए. हियर इन दिस वेरी केस द pi electrons, these are the pi electrons. यहाँ पे actually oxygen is more electronegative in character than carbon. These will get transferred away from the attacking reagent. Attacking reagent यहाँ पे CN negative है, वहाँ पे क्या बन जाएगा, शाबाश. It will become CH3 CO negative. यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम कर देगा CN, और बाद में ये H पॉजिटिव यहाँ पे ठहर जाता है और बन जाता है. these are known as cyanohydrin. these are known as cyanohydrin. अल्डिहाइड, अगर हमने यहाँ पे अल्डिहाइड ले लिया तो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, अगर कीटोन ले लिया तो कीटोन साइनोहाइड्रिन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश. दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. याद रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोगों को लिखना होगा तो इतना लिख लीजिए. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देयर इज द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम्स
इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ये याद रख लीजिए, ये क्यों एक टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज देयर। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन माइनस ई इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ट्रांसफर नहीं होते हैं। उसकी एक ट्रिक याद रखने के लिए है कि प्लस ई इफेक्ट तब होगा जब एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा एल्कीन्स को, और माइनस ई इफेक्ट तब होगा जब एक न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ऐड होता है, या उन कंपाउंड्स को ऐड होता है जिन कंपाउंड्स में जो दो एटम्स होते हैं जिनके बीच में एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। सी डबल बॉन्ड हो, ओ की तरफ नेगेटिव चार्ज, कार्बन की पॉजिटिव चार्ज, सी ट्रिपल बॉन्ड या नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट electromagnetic effect. Dear students, in the next lectures, coming lectures, we are going to discuss other topics of general organic chemistry. तब तक के लिए all the very best.